Hello, friends. A very warm welcome to Ansarkari. And today's session, we will be again picking up those important themes and concepts which will help us to get more insights for the both prelims and the mains examination. The first question is about the Dhankad accepting opposition notice to impeach judge rubbed government wrong way. So, for us, the question arises that what is the constitutional morality? What is the constitutional status of duties by the Honorable Vice President? So there is a political side to it, and there is a democratic constitutional side to it. So that is the takeaway. And second takeaway is that why and how, uh, you know, uh, the new election will be taking place, in what circumstances. Because under the Presidential and the Vice Presidential Elections Act, Election Commission is bound by a 30 to 32 day statutory timeline once it notifies the election schedule. So it allows 14 days for filing nominations by candidates, followed by 1 day of scrutiny and 2 day window for withdrawal of candidates. This is very important in that context, and that is what we have to see and we have to understand. So the story is obviously available everywhere that what happened, but the point is that how the demand of circumstances and the party in power can decide such things. For example, Faizan Mustafa sir is writing, Jagdeep Dhankad's controversial statement invited questions over the neutrality of his office. He is speaking about the fact that whether you will see that the role by vice president was neutral or not. So this is not the first time that a vice president has tendered resignation. VV Giri resigned to take over as acting president after President Zakir Hussain died in office in May 1969. Bharat Singh Shekhawat put in his papers after being defeated in the presidential elections by Pratibha Patil. R. Venkatraman, Shankar Dayal Sharma, and K. R. Narayanan also resigned after being elected as president. So these are the facts very important for the prelims. So the vice president office is above politics, but Dhankad not only made politically loaded statements in favor of BJP government, but during the elections he also visited Rajasthan. That also raised questions. And he also raised politically controversial issues of conversion and population control. What is most important is that Article 66, the Vice President is elected by the members of Parliament. Vice President does not have any significant role in the governance of the country. He is the ex-officio chairman of Rajya Sabha. He performed the extremely important role of presiding over the proceedings of Parliament's upper house. He is supposed to be a neutral umpire, and he must not speak anything which is constitutionally untenable statements, whether it is against judiciary or whether it is against any other sectors. So when he said that invocation of Article 142 is like a nuclear missile against democratic forces. So his observation in context of the court fixing timelines for governor to sign bills. So that is to be seen, that what he is trying to say. And democracy is not a majoritarianism rule. Constitution supremacy is the first principle, and the limits are placed on parliament vis-a-vis the constitution, and there are limits on Supreme Court also. So that is what we have to see, and that is why we say that it is very important that basic structural doctrine or even the functioning of different institutions, it must be respected. And when he is saying that ultimate repository, ultimate power, ultimate authority, and the last authority is only the Indian Parliament, that is speaking like on the lines of Indira Gandhi ji, and that is why you cannot agree with that. So he also criticized collision. So that is why you can say that a question can come up on what should be the conduct of the vice president. That is how we have to see. Secondly, Mumbai train blast verdict is a reminder of gaps in our system. It can help re-evaluate approaches to investigation and prosecution. Very true. Important role was played by Maharashtra Anti-Terrorism Squad, and charge sheet was filed. But the acquittal by High Court, but later on Supreme Court went on to give stay to the judgment, but they are free. So
what we can say that there must not be any flaw in the prosecution of terror cases. Evidence must be presented in a very, very robust way, and witness intimidation must be stopped. Interstate and international ramifications of most terror activities, it must be taken into account, and investigations must be of high quality. Collaboration and role of judiciary should also be analyzed. Higher judiciary must be equipped to recognize the complexities involved in terror prosecutions, and even civil society must also understand it must not become victim of ideological bias. So that is why acquittal is here is a reminder that there are gaps in our system which must be fulfilled. When we speak about uh, MiG-21 fighter jets, so they are going to be retired after 6 decades of service, and this showcases that Indian Air Force is going under an overhaul. India procured over 700 MiG-21 aircraft of different varieties such as Type 77, Type 96, BIS and BISAN since its inception in Air Force in 1963. And what one can say is that between 2017 and 2021, four squadrons have been, they have been, we can say that they have been phased out. Now, when Delhi government says that the cash reward is there for Olympic gold medals, it is 7 crore, and then medalists are going to get government jobs. It is again a kind of an incentive. It is again a kind of a motivation. It is again a kind of a strategy used by the state to promote elite athletes. And in one way, there is nothing wrong in it. There is need for, very good infrastructure in schools. That is very, very important. And most importantly, uh, the infrastructure, once it is there, then I believe in the longer run, the cash rewards and all that can also be tweaked. टाटा ईवी की जहाँ एग्जांपल हम देख रहे हैं, राष्ट्र का मान शौर्य के साथ पर्यावरण दिवस, देन PHDCCI and Indian Air Force, they together they went on to celebrate, they went on to promote New Delhi Ambala Adhampur New Delhi. That is a very important public outreach program, I would say. It is a public outreach program where we are trying to promote sustainable development and a clean environment also. As far as Bastar is concerned, you can always write in the mains that how Bastar is witnessing decline in the encounters, but then at the same time opening of schools, roads, and then rehabilitation, and then how landmines are to be, they are to be detonated, or I must say they are to be diffused. So Naxalites have damaged more than 200 schools buildings, but the change is underway. Nearly 350 schools which were shut, now they have been opened in Bastar. So this is what we have to take away from here. One Mahotsav, very important. It is a very, very important and a significant state level and national level program which is going to promote not only the idea of afforestation and also green wealth, but the idea that how in the future there are smart ways and there are simple ways to promote environmental protection. That from this perspective, you have to see this, and you can think about your district, think about your state, and you can bring a short note into it. Love is like a virus. It can happen to anybody at any time. It can be interpreted in so many different ways, but for the examination purposes, it is about the commitment. जहाँ चाह वहाँ रहा, एक बार जब सोच लिया कि देश की सेवा के लिए कोशिश करनी है, then under all circumstances one can really do that. Ethics के context में आप देख सकते हैं. And definitely India UK FTA is a very, very important development, and there is a deepening of ties between India and UK, and it is a kind of a very, very important and strategic revolution, because since 1990s, when Conservative Prime Minister John Major,
He supported Indian economic reforms, and the idea continued. And UK, sometime they meddled into Kashmir issue and Indo-Pakistan relations, but then uh, time was changing. For example, Honorable Indian Prime Minister I.K. Gujral called Britain a third-rate power when it went on to meddle into our issues. But still, UK, which was ranked among the top 5 economies and GDP exceeding the combined economic output of China, India, and Russia at that time, that has now lost. It is world's sixth largest economy. Its per capita income is still $55,000, whereas India is 3,000, China is 14,000, and Russia is 15,000. So we have to understand that Britain remains a superpower in that sense, and reality is that along with Russia, we must have good relations. We must have strategic relations with the UK also. So this is not very easy to have a continued and a positive relationship, keeping in mind what kind of government and what kind of changes have taken place in Britain. And this roadmap of 2030 for India-UK relations, FTA, is very, very important. And the fruits will be coming off of that, great, what I can say, relationship, whereas Britain is not part of even European Union. So the British economy, which is stagnating, it will get a boost. Similarly, Britain is a global leader in higher education, scientific research, and technology. So fresh avenues are being seen, and there will be opportunity where both the countries will be able to come together and to bring the best, as we have seen in context of different sectors except dairy and agriculture, where India UK partnership FTA is going to help us. Very important for the prelims. What are biostimulants? Biostimulants stimulate physiological processes in plants, and they help increase the yield. And substance can be produced using plant-derived waste materials, seaweed extracts, and other materials. And officially, fertilizer, order 1985, which regulates manufacturing and sale of biostimulants, defines it as a substance a substance or microorganism, or a combination of both, whose primary function is to stimulate physiological processes in plants and to enhance its nutrient uptake, growth, yield, and function, and nutrition, you can say, efficiency, crop quality, and tolerance stress. So India can be a very big market for biostimulants, and most importantly, uh, they are not falling under the existing fertilizers or pesticide categories. That is why they are sold in open market. And the inclusion of biostimulants, empowering the central government to fix specifications. This is very important. And the government's action is to, manufacturers, encouraging them. They could make and sell biostimulants for 2 years if they apply for provisional registration. And most importantly, this kind of extension is going to help the agriculture in a very, very great way in different parts. Because when we track India's climate change, then also it is linked with what we have just discussed. For example, India's installed electricity capacity has reached 484 gigawatt, and an important role is played by hydropower, nuclear power, and renewable energies like wind and solar. So attainment of 50% share of non-fossil sources in the installed electricity capacity was one of the 3 climate targets that India had set itself for 2030. Other 2 promises: reducing emission intensity, particularly important hai, emissions per unit of gross domestic product by at least 45% from 2005 levels, and creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent from the forest and tree cover. तो ये हमें पता होना चाहिए. तो 50% हमारा भी डिपेंडेंस है, उसको हम कम करेंगे. चाइना ने रिन्यूएबल कैपेसिटी अपनी 10 टाइम्स और बढ़ा दी है, लेकिन वहां पर तो फिर एक्स्ट्रा कैपेसिटी भी है, गवर्नमेंट की सब्सिडी भी है. India aims to install 500 gigawatt of non-fossil fuel-based electricity by capacity by 2030, and this is also a stated climate objective for India. लेकिन इसका कोई ऑफिशियल हमने जिक्र नहीं किया. So the question is capacity versus generation. 50% share of non-fossil fuels in installed capacity does not mean
that half of India's electricity is clean. Electricity generation from the renewable sources is intermittent. वो टाइमिंग पे, सीजन पे, क्लाइमेट पे डिपेंड करती है, इसीलिए उसको स्टोरेज चाहिए, बिना स्टोरेज काम नहीं होगा. तो इलेक्ट्रिसिटी itself is small part of the energy basket. Less than 22% of India's total energy consumption uh, is done in the form of electricity. The rest happens through direct burning of fossil fuels such as oil, coal, and gas. Therefore, electricity forms about 22% of India's total energy consumption, and non-fossil fuel sources account for 28% of energy consumption. इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक ए शॉर्ट नोट, we will discuss. This means clean energy from non-fossil fuel sources account for just 6% of India's total energy consumption. तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमने फॉरेस्ट्री टारगेट्स के ऊपर भी हमने काम किया है. हम बोल रहे हैं कि भाई 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक हम क्रिएट करने की बात करते हैं. और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट सेज दिस आल्सो, that in that we will be adding another 300 million tons of carbon dioxide equivalent of zinc uh, between which is added between 2021 to 2023. So इंडिया का जो कार्बन स्टॉक है वो सरपास कर जाएगा लोअर एंड को 2.5 से 3 बिलियन. सो ये चार जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे थीम की तरह जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए हैं, और बाकी भी जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी आ सकता है कि डिपेंडेंस रिन्यूएबल पे कितनी है, कैपेसिटी वर्सेस जनरेशन का डिबेट है, और उसके बाद हमारा फ्यूचर के लिए क्या है, और इमिशन इंटेंसिटी की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ से कीवर्ड्स नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट. So in Japan, elections are going on. So far right parties are surging ahead. It is because of the inspiration by uh, Donald Trump, and that is how the example is given. So typical claim is that a rapid increase in foreign workers that has hurt Japanese workers' wages, and that foreigners use a large share of welfare benefits. और उन्होंने जापानीज सोसाइटी को अनसेफ बना दिया. इन आइडियाज के ऊपर आप कह लीजिए कि जो ट्रम्प पॉलिसीज हैं उनको जापान में भी जगह मिलने की बात हो गई है. यूपी में अगर स्कूल मर्ज होते हैं तो आपको ज्यादा लंबा चलना पड़ता है, और सेफ्टी फियर्स की वजह से बहुत सारे लोग स्कूल नहीं भी जाते हैं. तो लेकिन इसके पीछे भी एक पॉलिसी है कि कितने स्कूल, कितने बच्चे, और कितना आप जो है उसको आप कैसे मर्ज करेंगे. सो आपको जो हम जनरल डिस्कशन करते हैं उसके हिसाब से आपको देखना है. तो ये बात सिर्फ यूपी की नहीं है, बाकी सारी जगह भी लागू होती है. ग्लोबल एक्सपेरिमेंट अगर रिमोट वर्क का किया जाए तो सर्वे की फाइंडिंग्स हैं. जेंडर इश्यूज की बात की उन्होंने, तो पॉइंट यही है कि फिजिकल प्रेजेंस जो है ऑफिस में अगर वो कम हुई है तो उससे कई नुकसान भी हैं. लेकिन अगर फिजिकल प्रेजेंस हो तो लॉयल्टी है, डिसिप्लिन है, सीरियसनेस है, और जो प्रेजेंट होने से जो एक इन्वायरमेंट बनता है उसको भी आप रिमोट वर्क में आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते. तो ज्योग्राफी का भी एक अपना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. वुमेन पर्टिकुलरली मदर्स टेंड टू वर्क फ्रॉम होम मोर ऑफन देन मेन, और वो उसको स्ट्रांगली डिजायर भी करती हैं. तो बैलेंसिंग जो पेड वर्क की जो बात है वो आ जाती है. फिर उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एंड आप कह सकते हैं कि कल्चरल शिफ्ट्स की बात है. जो जिस घर में बच्चे नहीं हैं वहां पर भी भाई अगर आप होम से काम कर रहे हो तो दे वैल्यू फ्रीडम. देयर इज टाइम फॉर हेल्थ, हॉबीज, क्रिएटिविटी, और डेली ग्राइंड ऑफ ऑफिस लाइफ से भी उनको मदद मिलती है. तो ये सारी पॉइंट्स हैं. तो अल्टरनेटिव यही है कि हाइब्रिड वर्क, केयरफुली डिजाइन मिक्स ऑफ होम एंड ऑफिस, बेस्ट पाथ फॉर मोस्ट जॉब्स. तो ये होना चाहिए. गवर्नमेंट भी जो है उसको बढ़ाए. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसे सोच सकते हैं. और आप कह सकते हैं कि फीमेल को भी उतना ही इंकरेजमेंट मिलना चाहिए. तो ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स आ जाते हैं. जैसे a team may be losing spirit, a team may be losing oversight, there can be declining innovation. लेकिन रिमोट सक्सेस के लिए हर इंडस्ट्री के पास पावर नहीं है, जैसा कि हम खुद पूरा ऐसा करते हैं, लेकिन हम फिर भी हम उसको आगे बढ़ाने की बात है. अब बात है कि इंडिया को जब अपना 100 गीगावाट का टारगेट पूरा करना है न्यूक्लियर एनर्जी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो आप उसको कैसे करेंगे. तो ये हमने पहले भी चर्चा की है. ये हमने पहले भी हमने किया है कि इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी स्टार्ट कैसे हुई. फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च सेक्टर अप्सरा में है, अप्सरा इंडिया में है. और उसके बाद जो है तारापुर की बात की हमने, और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा आर्किटेक्ट हैं. 8 गीगावाट एनर्जी हमने 1980 तक कर ली. लेकिन इंडिया ने चाइना से वॉर किया. उसके बाद न्यूक्लियर क्लब में 1964 में आया. एनपीटी हमने नहीं किया. पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया 1974 में. इंडिया को जो है इमर्जिंग न्यूक्लियर ऑर्डर से बाहर रखा गया. इंटरनेशनल कोऑपरेशन सीज कर दिया गया. एक्सपोर्ट कंट्रोल स्लो डाउन हो गए. तो इसीलिए हमारा न्यूक्लियर पावर जो है टारगेट जो है वो 10 गीगावाट का 2000 तक पुश हो गया, वरना जल्दी हो जाता. तो इसीलिए हमने सक्सेसफुली इंडियनाइज किया. 220 मेगावाट प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर इम्प्लॉयड इन राजस्थान.
उसका एडवांटेज था कि इट इज यूज्ड इन नेचुरल यूरेनियम यूज करेगा, और अनलाइक द डिजाइन ऑफ तारापुर लाइट वाटर रिएक्टर which use low enriched uranium, which that India obtained from the US and later from France. Subsequently, same 220 megawatt pressurized heavy water reactor units were established at Narora, Kyaga, Kakrapar, and the design was also upgraded to 540 megawatt. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में सीरीज हो गया. आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 इंटेंस नेगोशिएशंस होते हैं. इंडिया को फाइनली एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर मान लिया जाता है और उसको स्पेशल वेवर भी मिलता है. इंडिया की एक्सचेंज होने लगेगा न्यूक्लियर पावर. आप कह सकते हैं कि एक इंपोर्ट्स को हम ला सकते हैं और न्यूक्लियर फ्यूल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन अब नई डिफिकल्टीज आने लगी, जो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए चिंता का विषय थी. और रशिया इज द ओनली कंट्री दैट इज पार्टनरिंग विद अस एट कुदानकुलम with 6 VVER 1000 water reactors, because the government to government agreement signed in 1988 वो उससे पहले का है, जब हम पर बात लगाई गई, जब हम पे सेंक्शन लगाने की बात की गई. तो इसलिए ग्रीन डेवलपमेंट में आ जाते हैं हम. 2047 के लिए कैसे होगा? पर कैपिटा इनकम जो है वो करंट 2080 से अगर 22,000 करनी है तो जीडीपी को भी जो है 5 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन होना पड़ेगा. तो देयर इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड कोरिलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ और एनर्जी कंजम्पशन में. इंडिया का जो अभी पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बहुत थोड़ा है. हमारा 1208 किलोवाट आवर है, जबकि चाइना का है 4600 किलोवाट आवर, और यूएस का तो है आपका 12,500 किलोवाट आवर. आप सोचिए खुद ही. इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी 480 गीगावाट है, जबकि फॉसिल अभी भी हमने चर्चा की थी कि दोनों में 50% है. तो हमें 5 फोल्ड बड़ा होना पड़ेगा. सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट हमें चाहिए. इसीलिए 2030 टेरावाट जो आवर्स हैं टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2024 में, रिन्यूएबल एनर्जी हाफ है उसका. तो बात यही है कि क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स, जैसे मोदी सर ने जो बात की थी ग्लासगो में COP26 में, नेट जीरो एमिशन बाय 2070 और रेजिंग नॉन फ्यूल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी बाय 500 गीगावाट बाय 2030 50% के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैसे इंडिया उसको कर पाएगा, इस पे मेंस में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो renewable energy is estimated to provide 20% of the demand and 25% with the investment in battery and pump storage. तो इसीलिए इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर के लिए भी रेडी है. इंटरेस्ट भी उसमें हो रहा है, और ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं वो हमें क्रूशियली आगे बढ़ रहे हैं. हमारे लिए बहुत हो रहा है. AIA, वर्ल्ड बैंक सभी हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं, और उससे आप कह सकते हैं कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट भी हो गया. तो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की हम बात करते हैं. न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्लान है 700 मेगावाट का pressurized heavy water reactor by facilitating land acquisition, streamlining licensing and strengthening indigenous supply chain. So third is the lag to accelerate negotiations with partners in uh, track is to accelerate negotiations with partners in France and US, जो कि बहुत धीरे चल रहा है. फिर एटॉमिक एनर्जी एक्ट को हमने रिपील बोल रहा हूँ, हमने उसको अमेंड करने की बात की. उसके बाद न्यूक्लियर पावर फाइनेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आ जाता है. रेडियो एक्टिव वेस्ट को हमने बात की कि हम कैसे ढंग से डिस्पोज ऑफ करेंगे. तो इसीलिए क्वेश्चन यही आता है कि क्या एनपीसीआईएल ही इसका सिर्फ मालिक रहेगा एक्सक्लूसिवली, या हम उसको डाइवर्सिफाई भी करेंगे और उसके बाद हम जो है स्टार्टअप्स या बाकी मेजर प्लेयर्स को भी लाके आने की बात करेंगे. तो कॉम्प्रहेंसिव हमें अमेंडमेंट्स की बात है इसके अंदर. और हम जो है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की बात भी करते हैं. हम जो है बात करते हैं कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए हमारा साथी बने, हमारा इम्पेकेबल न्यूक्लियर सेफ्टी रिकॉर्ड है वो बना रहे, और हम जो है क्लासिफाई करें और हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं. तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा आपको ओवरव्यू देते हैं. जैसे अगर आप वाइंड अप करें तो उससे पहले आप ये देखें कि कैसे 4 यूनिट जो हैं 700 मेगावाट ईच की, वो माही बांसवाड़ा राजस्थान में आने की बात है. लैंड एक्विजिशन हो रहा है. एक जॉइंट वेंचर होगा रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन REC के साथ और NTPC का. तो इंडिया जो है आप कह सकते हैं कि अगर अपनी प्रॉमिस पे डिलीवर करना है 100 गीगावाट की, तो फॉरेन पार्टनर और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर चाहिए ही चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट. हाउ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट इमेजिन इन इंडिया. अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल विजन की अगर हम बात करें 1895 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. तो गालोगन तिलक साहब ने पहले एफर्ट किए. सेल्फ रूल विद इन ब्रिटिश एम्पायर, उसमें 10 आर्टिकल आए. इंडिविजुअल राइट्स, लीगल इक्वलिटी, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर, सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच. फिर MN रॉय साहब का आया ड्राफ्ट 1944 का, एक ड्राफ्ट रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का, फिलोसफी ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म. उसके बाद जो है उन्होंने फेडरल इंडिया सोचा, लिंग्विस्टिकली ऑर्गेनाइज प्रोविंसेस और प्रमोट पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की, और राइट टू रिवोल्ट भी उन्होंने रखा उसके अंदर. रॉबर्ट बिल ऑफ राइट्स की बात की, सिटीजन कमिटीज की बात की, इंश्योर ग्रासरूट पार्टिसिपेशन की बात की. तो पॉलिटिकल साइंस और IR के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट इट वाज रिजेक्टेड because parliamentary sovereignty in favor of constitutionally entrenched republic where citizens
नॉट लेजिस्लेचर वर द अल्टीमेट लोकस ऑफ पावर। तो इसीलिए जो उनका था कि पॉलिटिकल एजुकेशन भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, जैसे कमेंट्री में है, मैकेनिज्म सच एज सिटीजंस कमिटीज हाइलाइटेड हिज कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स इनटू एक्टिव सिटीजंस। तो वो नहीं हो पाया, तो उसको प्रीएम्बल के थ्रू हमने किया। डीपीएसपी की हमने बात की, तो नॉन जस्टिसिएबल है डीपीएसपी, तो ये उनका अलग था। दूसरा फिर हम कह सकते हैं कि हिंदू महासभा, उन्होंने प्रपोज किया यूनिटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, यूनिटरी स्टेट स्ट्रक्चर हो, इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र बने, और उसके बाद जो है कल्चरल यूनिफिकेशन थ्रू वन लैंग्वेज वन लॉ वन नेशन वन कल्चर, ये भी नहीं हो पाया। और आप कह सकते हैं कि इस पर भी डिस्कशंस हुए। और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। और हिंदू महासभा का आइडिया था स्टेट मस्ट बी बार्ड फ्रॉम इंडोइंग एनी रिलीजन और डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ। इसीलिए उन्होंने किसी भी स्टेट रिलीजन को उन्होंने नहीं माना। तो ये प्रोविजंस जो है कमिटमेंट दिखाते हैं कि फॉर्मल सेक्युलरिज्म और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमारा कैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में हमारा हो सकता है। और भी आप कह सकते हैं कि और भी चीजें हुई। तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, श्रीमन नारायण अग्रवाल, उन्होंने फिर जो है गांधीयन आइडियाज को आगे बढ़ाने की बात की। नॉन वायलेंस है, ट्रस्टीशिप है, रूरल सेल्फ सफिशिएंसी है, कॉन्फिडेशन ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग, ग्राम स्वराज की बात की, बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नेंस की बात की, रिजेक्टिंग इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, वेस्टर्न लिबरलिज्म की बात की। तो उसके कुछ आइडियाज आप कह सकते हैं कि हमारे डीपीएसपी में भी आए। और आर्टिकल 6 ऑफ द ड्राफ्ट, उस वो बोलते थे एवरी सिटीजन राइट टू कीप एंड बियर आर्म्स, तो वो हमने नहीं माना। तो आप कह सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण साहब ने भी एक ड्राफ्ट दिया, उन्होंने भी बोला कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर दिस डॉक्यूमेंट वाज फर्मली रूटेड इन द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट आइडियाज, कि सबका जो है एबोलिशन, प्राइवेट ओनरशिप को आप एबोलिश कर दो, मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रपोज लैंड रिफॉर्म और व्हीकल्स वर्कर्स कंट्रोल और फैक्ट्रीज कर दो। यूनी कैमरल लेजिस्लेचर की उन्होंने बात की, कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम की सोशल ग्रुप्स, वर्कर प्रेजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स। और ये भी कहा कि सारा लैंड नेचुरल रिसोर्सेज नेशनल प्रॉपर्टी होना चाहिए, प्लानिंग शुड बी कंडक्टेड बाय सेंट्रल प्लानिंग कमीशन अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। तो ये भी हमारे लिए पूरा फिट नहीं हुआ। तो इसीलिए इसका जब हम कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं 1895 का, एम एन रॉय का, हिंदू, सोशलिस्ट, बाकी, तो हमें पता लगता है कि हमने जो है गांधीयन आइडियाज हमने जो है सब जगह से कुछ कुछ लिया है। इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम रेंज फ्रॉम द मिनिमलिस्ट एंड एग्रेरियन गांधी मॉडल, और सबका अलग अलग हुआ। सोशलिस्ट पार्टी के जो आइडियाज हैं वो भी हमने लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल लिबर्टीज जो है 1895 बिल एंड द रॉयस ड्राफ्ट वर स्ट्रॉन्गेस्ट। सोशलिस्ट पार्टी ने तो प्रायोरिटाइज किया था इकोनॉमिक राइट्स को, क्योंकि उन्होंने देखा इकोनॉमिक स्ट्रगल की वजह से सब कुछ है। गांधी जी ने ड्यूटी और कम्युनिटी वैल्यूज पे ज्यादा फोकस किया, और हिंदुस्तान फ्री स्टेट ड्राफ्ट ने आइडियोलॉजिकल नेशनलिस्ट के ऊपर ज्यादा किया। तो ये कुछ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है, ये आपको नोट करनी चाहिए। फिर वही बात, हम जब नेशनल शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, कमीशन की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ओवर 90% ऑफ सीवर डेथ वर्कर्स हैड नो सेफ्टी गियर। ये अभी भी वही सिचुएशन है। तो बस इसको आप पकड़ लीजिए और इसी को आप सही करने की बात कीजिए। A beetle fungi combo threatens plantation in the rubber capital. For prelims, it is very important. The destructive power of the beetle fungi association. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्शन प्लान होना चाहिए मिटिगेट के लिए, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर्स को लेके आना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, और स्ट्रेटेजिक आइडियाज के साथ इसको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जो बीटल फंजी एसोसिएशन है वो लीफ को गिरा देगा, ट्रंक को ड्राई कर देगा, टी की डेथ हो जाएगी। तो एंटी फंगल एजेंट्स आर पॉपुलर वे ऑफ कॉम्बेटिंग द प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम रिमूविंग द इन्फेक्टेड पार्ट्स, बर्निंग और चिपिंग, और यू कैन से ट्रैप्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया क्योंकि वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर है, एंड सेकंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। केरला प्रोड्यूस 90% एंड अकाउंट फॉर 70% ऑफ इंडिया रबर कल्टिवेशन। तो फाइटोसैनिटरी मेजर्स हमें चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, बाकी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट या फिर बाकी सारी चीज़ों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग साइंटिफिक टेम्परमेंट, साइंटिफिक आइडियाज एंड सो फोर्थ। गवर्नमेंट यूपीएस को और अट्रैक्टिव बनाना चाहती है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। एंड कंट्रीब्यूशन ये कह रहे हैं कि रिजाइन होने से 10 साल पहले आ जाएगा। इमीडिएट पेंशन भी गिवन टू सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हु आर रिटायर बिफोर 60, एंड गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर स्विचिंग टू यूपीएस बाय 3 months टिल September 30। आप ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से सरकार कितना कुछ करने की कोशिश कर रही है, उसको आपको देखना है। गवर्नमेंट रेजेस 35,000 crore tax via foreign black money law, very important. It is one of the important ways. Tax and penalty demands over 35,000 crore and filed 163 prosecution complaints between 2015 to 2025. So very important. So it is completed under the Black Money Undisclosed Foreign Income Assets and Imposition of Tax Act 2015.
तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, 338 करोड़ टुवर्ड टैक्स पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। और ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हमारा वर्क उसको दिखाता है कि कैसे हमने चीज़ों को किया। तो इंसॉल्वी कोड हेल्प सॉल्व 26 लाख करोड़, सोचिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट, 26 लाख करोड़, हाईएस्ट रिकवरी रेट। तो ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन वैसे आ सकता है, मेंस के अंदर आपको कोड करना चाहिए। एंड 30,000 मोर देन 14 लाख करोड़ आए और 30,000 केसेस जो हैं वो तो हमने एनसीएलटी के पहुंचने से पहले ही सॉल्व हो गए, कितनी बड़ी बात है। अब ये मेंस के लिए आ सकता है कि डिजिटल कंपटीशन बिल, गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवाइव डिजिटल कंपटीशन बिल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूएस के जो कंसर्न्स हैं ओवर द यूरोपियन यूनियन का जो एक्ट है या फिर जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं उसके बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट भी चाहती है कि डिजिटल कंपटीशन बिल लेके आए। ट्रेड डिस्कशन जो हो रहे हैं हमारे यूएस और इंडिया के, उससे पहले हम इन चीज़ों को और अच्छे से कर लें, ताकि आप कह सकते हैं कि हमें बाद में दिक्कत ना हो। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें जो डेटा को प्रोटेक्ट करना है या हमें मार्केट एक्सेस की जो बात है, क्योंकि जो है इम्पैक्ट ऑफ द बिल ऑन द ट्रेड नेगोशिएशन स्टेम्स फ्रॉम द यूएस अपोजिशन टू यूरोपियन यूनियन डिजिटल मार्केट एक्ट। वो चाहते हैं कि उनको अपोज कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें अब अपने आप को अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा और यूएस ट्रेड एग्रीमेंट का इसको पार्ट बनाना होगा। पॉलिसी यू टर्न एंड फ्लू गैस डीसल्फर, हमने 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 कोशिश की थी, तो ये उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं डेथ नेल्स फॉर मैन्युफैक्चरर्स हु इन्वेस्टेड इन इट। अब जिन मैन्युफैक्चरर्स ने जो है फ्लू गैस डीसल्फराइजर्स लगाए थे, अब आपने हटाने की बात कर दी। तो इससे जिन्होंने पैसा लगाया था, जो कि PM 2.5 को रोकने की बात करते थे, अब उनका क्या होगा। तो इसीलिए हम जानते थे शुरू से ही कि इंडियन कोल तो लो ऑन सल्फर है, तो इसीलिए SO2 तो कम ही होगा, तो इसकी जरूरत ही क्या थी। तो वही बात है कि अब आप क्या करोगे। अब पॉइंट है, जिन्होंने पैसा लगा दिया उनका क्या होगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, what you can say that पब्लिक सेक्टर ने भी पैसा लगाया तो उनका होगा क्या। तो दैट इज व्हाट द आंसर यू मस्ट थिंक ऑफ। एंड कंप्लीट टर्न अराउंड होने के बाद कैसे सर्वाइव हो सकता है। प्राइवेट 5G डिमांड की जहां तक बात है, यू नो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या उसकी डिमांड इतनी हो भी पाएगी। इंडिया हैज स्पेंड मोर टाइम ऑन डिबेटिंग द नीड फॉर अ स्टडी देन अदर्स स्पेंड फ्रॉम डिमांड असेसमेंट डिप्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्री की डिमांड है वो जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल, ऑटोमोटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, एयरपोर्ट्स, माइनिंग, पोर्ट्स, उनके पास तो है, लेकिन क्या पॉलिसी का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं स्टडीज। तो इसीलिए बात वही है कि इंडिया को डिले नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और सबको आगे बढ़ाना चाहिए। और इंडिया जो है सारी चीज को प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ सकता है, उसको अप्लाई करने में कोई कसर और कोई टाइम नहीं छोड़ना चाहिए। वाई लेस पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, यही तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने जैसा बताया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो सामने लिखा हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लिखा हुआ है। पॉपुलेशन अबव 15 years who are looking for a job but did not get it. Reference period for the survey is 365 days for user status and 7 days for current status. तो वही है कि सैंपल डिजाइन में चेंजेस लेके आए तो उसका फिर उसका जो अप्रोक्सीमेशन है या जो उसका अप्रोच है वो चेंज हो जाएगा। दैट इज हाउ इट इज। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 5.6। PLFS data shows increase in the share of own account workers, especially in rural areas. Very very important. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स हैं एंड आप कह सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में है, सीजनल है, पेटी ट्रेड्स हैं, रिपेयर्स हैं, और दिस शोज अ ट्रेंड अवे फ्रॉम कैजुअल लेबर और वेज एम्प्लॉयमेंट बिकॉज राइज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग टू maintaining overall employment rate as individuals find alternative sources of income and the formal employment opportunities are limited. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन है कि उसमें फीमेल वर्कर्स का क्या हुआ, फीमेल एग्रीकल्चर वर्कर्स का क्या हुआ, शहर में किस तरीके से है, डिस्ट्रेस माइग्रेशन पे उस पर इम्पैक्ट क्या हुआ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सीन। So these ideas and themes, please do write points and we will be discussing further once you have understood it, so that हम इसको डिस्कस करके अपने आंसर्स में लाने की कोशिश करेंगे। So thank you very much for being with Ansarkari, and the different programs and ideas are designed in such a way which must bring success to your hard work. Thank you very much.